everyone. I hope you're all fine and doing great. So, I'm making this video, and this video is basically about comparing GPAT and NIPER and what are the additional things that you need to do, and basically everything that you need to know before you give your NIPER exam. So, we'll first talk about what is the basic difference between GPAT and NIPER. Okay? Now, why are we talking about this? Because the exam pattern of NIPER is very different from GPAT, and also because of the fact that there are certain additional topics that you need to study for NIPER, which we usually do not study for GPAT. Okay? So the first thing that we talk about here is the number of questions. So when we talk about GPAT, we have around 125 questions in GPAT. Okay, that is divided into various sections, and all these 125 questions comprise of your pharmacology, your SUTEX, and all the subjects. The total they make up 125 questions in GPAT. Whereas when we talk about NIPER, it has 200 questions. Okay, and this 200 questions covers basically the entire syllabus, all the subjects that you study for GPAT, plus some additional topics that are in the syllabus for NIPER. The second thing that I want to highlight here is the time. Now, for GPAT, we have 3 hours, okay? Whereas for NIPER, we have 2 hours. Now, if you see, so for every question in GPAT, like there are 125 questions and we have 3 hours for GPAT. So for every question, you have around 86 seconds or say roughly 1.5 minutes. Okay? You have 1.5 minutes per question. So you have a lot of time when you attempt GPAT. Whereas if you talk about NIPER, this comes out to be 36 seconds, less than a minute per question. Okay, so this means the time is much less in NIPER. ठीक है, अब this might seem कि 125 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे हैं and 200 questions के लिए 2 hours है. You might seem कि this is practically impossible to attempt questions, but in actual this is not the case. अब ऐसा क्यों नहीं है? Because NIPER के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, they are very short in the sense, अगर आप GPAT के क्वेश्चंस देखो तो वो these are long sentences. ठीक है, GPAT के क्वेश्चंस 3-4 लाइन के होंगे, या हो सकता है कुछ बहुत सोचने वाला हो, एंड देन दे हैव ऑप्शंस आल्सो कि के बाद सेंटेंसेस में दे देते हैं, तो ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होती हैं यूजुअली. वेयरएज नाइपर में क्या है, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन होंगे. ऐसा नहीं कि कोई बहुत लंबे स्टेटमेंट वाले होंगे, 1-2 वाले होंगे, जरूर होंगे, बट यूजुअली सिंगल लाइन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं एंड उनके बहुत डायरेक्ट सिंपल आंसर्स होते हैं. सो इफ यू नो, अगर तुम्हें आता है तो यू विल आंसर इट विद इन 10-20 सेकेंड्स, और अगर तुम्हें नहीं आता है तो अगर तुम आधा घंटा भी उस पर बैठे रहोगे, यू स्टिल वोंट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखना, एंड ये थोड़ा टाइम का ध्यान रखना. ठीक है, सो बेसिकली इट्स मच इजियर फॉर नाइपर. अगर मैं एग्जाम को अटेम्प्ट करने की बात करूं तो आई फील नाइपर में अटेम्प्ट करना इज मच इजियर, बिकॉज कि टाइम कॉन्स्टेंट है, और तुम्हें अगर आता है तो तुम करोगे, नहीं आता तो तुम छोड़ दोगे. वेयर जीपैट में क्या होता है कि बच्चे ना बार बार लाइक यू कीप थिंकिंग अबाउट सर्टेन क्वेश्चंस एंड यू एंड अप डूइंग देम रॉन्ग अ लॉट ऑफ टाइम्स. वेयर नाइपर में ये चीज नहीं होती है. ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, अब अगर हम बात करें सिलेबस की, सी एज सच ना सिलेबस जीपैट एंड नाइपर का सेम है. all the subjects and all the things that you've studied for GPAT, the exact same things you have to and you must read and revise for your NIPER exam. ठीक है, but there are certain additional topics या कुछ ऐसे topics हैं जिनमें से ना like वो NIPER के pet topics हैं और उनमें से questions आते ही आते हैं. ठीक है, अब पहले तो additional topics की बात करते हैं. See, एक तो NIPER में ना थोड़ी सी general knowledge के questions आते हैं. ठीक है, जीके पे क्वेश्चन आते हैं, एंड दिस जीके इज नॉट समथिंग कोई बहुत डिफिकल्ट आती है, बहुत इजी जीके आती है, एंड यूजुअली थोड़ी करंट वाली आती है. जैसे इफ आई टॉक अबाउट द 2019 नाइपर एग्जाम व्हेन आई गेव इट, तो उस टाइम ना क्वेश्चंस वर, आई स्टिल रिमेंबर उस टाइम क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था, तो उस पे क्वेश्चंस थे.
ठीक है। एंड और भी मतलब कुछ जनरल से क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन क्या, हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ये 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। एंड देन मतलब यूजुअली बहुत जनरल सी जीके आती है, सो आई वोंट से कि यू रीड बुक्स और समथिंग, बट जस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। न्यूज व्यूज देखो 5-10 मिनट, इफ यू हैव टाइम रीड इन शॉर्ट्स। इससे ज्यादा यू डोंट हैव टू actually like focus very a lot of time. You don't have to invest on this because you cannot compromise with the core subjects. Yes, but अगर तुम्हारी जीके अच्छी है, तुम अच्छे से तुम वहां पे अटेम्प्ट कर पाते हो, जीके will be it'll be the rank decider. तुम्हारा रैंक 100 आएगा या तुम्हारा रैंक 30 आएगा, a major part of it will be influenced by GK. ठीक है, so this is important. So just be aware, news देखो, read in shorts, and just be aware what is happening in the world. सेकंड आता है जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन आते हैं। नाउ एप्टीट्यूड इज समथिंग कि आप एकदम से तैयारी नहीं कर सकते। इट्स नॉट कि आप एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले बैठोगे एंड सडनली you'll have the tricks कैसे एप्टी को अटेम्प्ट करना है, एंड ऐसा भी नहीं है कि वो एकदम से आपका वो एप्टी वाला माइंड डेवलप हो जाएगा। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि एप्टी के लिए ना रोज 15 से 20 मिनट निकालो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसमें बस क्वेश्चंस करो कि कैसे करने हैं, क्या है, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, सो ये हो गया एप्टी। अब ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे बहुत बार क्वेश्चन स्नाइपर में आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, एक तो है जैसे नेम रिएक्शंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बहुत बार वो नेम रिएक्शंस पे क्वेश्चन देते हैं, एंड क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट होता है, जैसे दे विल टेल यू कि दिस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट इज एक्टिंग एंड इज गिविंग this enzyme is involved. Basically तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे, you just have to tell the name of that reaction. ठीक है, या they might also ask कि this is the reaction, तो what is the reagent used in that reaction. So name reactions जरूर अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, then बायोटेक में से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं नाइपर में। ठीक है, बायोटेक हो गया, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड एक चीज और, स्पेक्ट्रो में ना when you read spectroscopy तो you have certain values, उसमें lambda values होती हैं, and उसमें mass spectroscopy में भी कुछ values होती हैं। उन values पे ना बहुत बार question आया हुआ है। 2019 में भी एक या दो क्वेश्चन थे if I'm not wrong। तो वो बहुत बार इस पे क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रो की वैल्यूज के ऊपर। सो मेक श्योर यू मेक अ लिस्ट एंड यू रिवाइज एंड रीड देम अगेन एंड अगेन। ठीक है, जितनी बार पढ़ोगे उतना ज्यादा तुम्हारी वो मेमोरी में स्टोर होता जाएगा। सो मेक श्योर यू रीड एंड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज फॉर नाइपर एग्जाम, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जितने भी हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी होंगे, वो सब जरूर करना ही करना। इट इज वेरी क्रूशियल। नाइपर के बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले साल के पेपर से रिपीट होते हैं। ठीक है, उसका प्राइम रीजन ये है क्योंकि नाइपर का पेपर बाहर नहीं आता है, neither they give the answer key or something, so they repeat a lot of questions. So there's this book Inamdar, do follow it. उसमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं, एटलीस्ट 2008-9 से 2011 से तो एटलीस्ट करना शुरू कर देना, एंड मेक श्योर यू अटेम्प्ट ऑल दोस क्वेश्चंस, उनको अच्छे से पढ़ के जाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर नाइपर आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, so this was basically about the exam pattern and कैसे पेपर आता है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं। so now I'll jump into नाइपर। ठीक है, पहले तो एक चीज समझो, नाइपर एक नहीं है, नाइपर 6 के 7 है। ठीक है, यू हैव नाइपर मोहाली, यू हैव नाइपर हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, रायबरेली, कोलकाता एंड हाजीपुर। ठीक है, ये 7 नाइपर है हमारे पास। ठीक है, अब इनमें से भी ना, इफ आई टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द नाइपर्स अपार्ट फ्रॉम मोहाली, तो इन सब में से अगर कोई अच्छा है, दैट इज ओनली नाइपर हैदराबाद। ठीक है, बट योर टारगेट शुड बी नाइपर मोहाली, बिकॉज नाइपर मोहाली हैज दैट ब्रांड नेम, उसका स्ट्रॉन्ग एक एलम बेस है, कंपनीज आती हैं अच्छी प्लेसमेंट्स के लिए, एंड इट्स एन ओवरऑल गुड इंस्टीट्यूट। ठीक है, एज कम्पेयर टू दी अदर्स। तुम्हें यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट फील नहीं होगा कि यहाँ पे फैकल्टी नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, ये सब चीजें यहाँ पे नहीं है, जबकि बाकी जितने भी नाइपर्स हैं वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, सो मेक श्योर कि यू गिव योर बेस्ट एंड आपको नाइपर मोहाली में ही सीट मिले। ठीक है, हाँ
इफ आपका थोड़ा सा पीछे चला जाता है रैंक एंड यू वांट टू कंसिडर अदर नाइपर्स, आई वुड सजेस्ट नाइपर हैदराबाद को, यू कैन गिव इट अ सीरियस थॉट. बट अपार्ट फ्रॉम नाइपर हैदराबाद एंड मोहाली, आई डोंट थिंक कि कोई भी उस लेवल का है कि आप इतनी दूर अपने घर से जाओ फॉर अ स्पेसिफिक नाइपर, बिकॉज वहां पे बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है कुछ नाइपर्स में. ठीक है, कुछ अपनी बिल्डिंग में भी नहीं है, वो मतलब दूसरे रेंट की बिल्डिंग्स पे उन्होंने कॉलेज चलाया हुआ है. सो आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉइंट इन गोइंग टू सच अ प्लेस. सो नाइपर मोहाली एंड हैदराबाद. ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द रैंक्स, ठीक है, फॉर नाइपर मोहाली यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि यू गेट अ रैंक से 200 तक, 200 से ज्यादा नहीं, बिकॉज इससे पीछे अगर तुम स्लिप होते गए ना तो यू लूज योर चांसेस. ठीक है, इफ आई से टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो मोहाली में है, तो मोहाली हैज 205 सीट्स इन एमएस और एम फार्म या एम टेक जो भी है, एंड 46 सीट्स फॉर द एमबीए प्रोग्राम. ठीक है, तो अगर तुम्हें मोहाली में सीट लेनी है, अगर लेट्स जस्ट कीप द फैक्ट असाइड कि कौन सी स्ट्रीम में, लेट्स जस्ट से कि तुम्हें सिर्फ मोहाली में सीट लेनी है, तो अगर मोहाली में सीट लेनी है एमएस में, तो ये मान के चलो कि तुम्हें एटलीस्ट 200 तक तो रैंक लेना ही लेना है. अगर इससे पीछे स्लिप करा रैंक, जितना पीछे स्लिप करेगा उतने चांसेस तुम्हारे कम होते जाएंगे. ठीक है, सो मेक श्योर यू गेट अ गुड रैंक. अब पहले मैं सारी सीट्स बता देता हूँ कौन से नाइपर में कितनी कितनी सीट्स हैं, एंड देन विल टॉक अबाउट देम. So if I talk about Naipur Hyderabad now, so Naipur Hyderabad में we have 138 seats for MS and MBA के लिए 22 seats हैं. ठीक है, MBA के लिए या 28 है, आई एम नॉट अवेयर उनका एग्जैक्ट नंबर अभी क्या है, बट 20 से 30 के बीच में है. If I talk about Naipur Ahmedabad, so Ahmedabad has 132 seats for MS. ठीक है, एंड इस साल से उन्होंने एमबीए प्रोग्राम भी शुरू किया है, एंड अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन मुझे है वहां पे 20 सीट्स वो शुरू कर रहे हैं विद द एमबीए प्रोग्राम. ठीक है, सो दिस इज स्टार्टिंग. इफ आई टॉक अबाउट गुवाहाटी, गुवाहाटी में सिर्फ 94 सीट्स हैं एमएस की, वेयर एज रायबरेली में रायबरेली में 77 सीट्स हैं. ठीक है, एंड ये भी एमएस के लिए ही है. कोलकाता की अगर बात करें तो कोलकाता में 95 सीट्स हैं एमएस की, एंड हाजीपुर की अगर बात करें तो हाजीपुर हैज 54 सीट्स. अब एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ 3 इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे एमबीए है. ठीक है, सो इफ यू आर कंसिडरिंग एमबीए एन ऑप्शन, तो यू हैव नाइपर मोहाली एंड नाइपर हैदराबाद, एंड इस साल से जो नया शुरू हुआ है दैट इज नाइपर अहमदाबाद. ठीक है, नाइपर मोहाली एज आई सेड इनका ब्रांड नेम अच्छा है, सब कुछ है, सो दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू, ये नहीं जाना चाहिए. इसके अलावा एमबीए के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो हैदराबाद इज अ गुड ऑप्शन. ठीक है, एंड बाकी एमएस के लिए भी यू कैन कंसिडर हैदराबाद. इसके बाद वाले जितने भी नाइपर्स हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है कि यू शुड बी एमिंग फॉर देम. ठीक है, सो फर्स्टली मेक श्योर यू गेट अ गुड रैंक अराउंड 200. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सीट्स इन नाइपर मोहाली, ठीक है, नाइपर मोहाली में मैंने जैसे आपको बताया कि 205 सीट्स हैं फॉर एमएस एंड 46 सीट्स हैं फॉर द एमबीए प्रोग्राम. ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो कि जब आपने आई एम श्योर जब फॉर्म भरा होगा तो उसमें वो ऑप्शन पूछते हैं कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर एमबीए और नॉट. ठीक है, तो वो एक जिन्होंने एमबीए के लिए अप्लाई करा है, ओनली 2 स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर द 46 एमबीए सीट्स. अगर आपने उस टाइम पे एमबीए के लिए नहीं भरा है तो यू कैन नॉट क्लेम अ सीट इन द एमबीए डिपार्टमेंट. पहली चीज. अब ना मैं तुम्हें थोड़ा सा एक रैंक्स की रेंज बता देता हूँ कि किस रेंज में कितने के रैंक तक मिल जाती है. ठीक है, so if I talk about pharmaceutical analysis, see आज से 1-2 साल पहले तक ना analysis was one of the most sought out MS streams in नाइपर मोहाली. ठीक है, एंड इसमें अगर 1-2 साल पहले की बात करूं तो यूजुअली ना जो टॉप 10 रैंकर्स होते थे ना वो एनालिसिस की सीट्स वहीं पे खत्म हो जाती थी. बट सिंस बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस 2019 में जो एनालिसिस था लोगों ने नहीं लिया. ठीक है, एंड एनालिसिस का जो लास्ट रैंक गया था दैट वाज समवेयर अराउंड 50 या 60 के आसपास, मतलब 50-60 रैंक वाले को एनालिसिस में सीट मिली है. बट एज आई सेड दिस इज अ चेंजिंग सिनेरियो, तुम्हें पता नहीं है कब क्या हो जाए.
So you cannot be sure, but I'm giving you an idea कि before 2019 क्या सिनेरियो था and 2019 में क्या सिनेरियो था. अब 2020 के लिए I cannot predict कि टॉप 10 रैंकर्स जितने होंगे वही ले जाएंगे या पीछे तक जाएगा. ठीक है. आफ्टर एनालिसिस ना फार्मास्यूटिक्स है एंड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी फॉर्मुलेशन. ठीक है, पीटीएफ बोलते हैं जिसको. अब सी फार्मास्यूटिक्स एंड पीटीएफ ये सबसे ज्यादा सॉर्ट आउट फील्ड्स हैं. इफ आई टॉक अबाउट फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, अगर फार्म टेक में किसी को एम फार्म करनी है तो दीज आर द मोस्ट सॉर्ट आउट फील्ड्स. ठीक है, और इसमें भी सूटिक्स जल्दी खत्म हो जाता है, पीटीएफ थोड़ा पीछे के बाद चला जाता है. बट मतलब ये बच्चों का ना एक थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव होता है कि उन्हें किस में जाना है, सूटिक्स में जाना है कि फॉर्मुलेशन में जाना है. बट अगर मैं इन दोनों का कंबाइंड बात करूं तो से 30 to 35 रैंक तक ना सूटिक्स और पीटीएफ दोनों की सीट्स खत्म हो जाती हैं. सो इफ यू आर एमिंग कि यू वांट अ सीट इन नाइपर मोहाली इन फार्मास्यूटिक्स और इन pharmaceutical formulation stream, so you need a rank below 35. Okay, only then there are chances. Yes, of course, the current scenario will be different according to the preferences of the students, but you at least need a rank below 35. Only then you can think of ki you might have a chance. Then if your rank is above 35 or 40, the chances of you getting into the certain streams will diminish really badly. Then comes medchem, medicinal chemistry. Like I said, before 2019 till 2018, a lot of students didn't really, the top rankers basically didn't really go for medchem. But since the scenarios keep changing, in 2019 the top rankers, if I'm not wrong, rank 2, rank 5 and rank 7, and a lot of top rankers, they preferred medchem. Okay, so and medchem, some of the top rankers plus around 80 and 90 rank, till 90 rank medchem did go. But this is a changing scenario with analysis and medchem. You cannot really be sure that what will be the scenario. Now the scenario changes every year, but this is just a basic idea that I'm giving you. Okay, so next comes the college. Now if you have a rank say around 100, so you have chances that you can get into college. Also, if you have a top rank or a good rank, say below 50 or something, and you want a seat in college, you can obviously go for it. But these are the 4 streams which are most sought out. Okay, so these are the 4 streams जिसमें लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं. So make sure अगर if you plan to like go into these 4 streams or 5 streams, you need to get a rank below 100. Only then you can think of these 4 options. वरना भूल जाओ. इसके बाद जब ये सारी सीट्स भर जाती हैं, देन कम्स नेचुरल प्रोडक्ट्स है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, एक बायोटेक वाला भी है. ठीक है, देन रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी भी है, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी विच इज से समवॉट रिलेटेड टू द कॉलेजी आल्सो. ठीक है, इसके बाद फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स है. ठीक है, सो अगर किसी का बाहर जाने का प्लान है आफ्टर एम फार्म या आफ्टर देयर मास्टर्स, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स इज अ गुड ऑप्शन. Then we also have clinical research and pharmacy practice. ठीक है, तो ये सारे basically अलग अलग streams हैं. You can go through the brochure and read all these. But ये चीज ध्यान रखना, अगर इन 4 streams में चाहिए तो you need a good rank below 100, and only then you can like think of getting into one of these streams. वरना मुश्किल हो जाएगा. Now coming to the MBA part. पहली चीज, जैसे मैंने पहले बताया, जब आपने फॉर्म्स भरे थे, अगर उस टाइम पे यू हैवंट फिल्ड द ऑप्शन फॉर द एमबीए, यू आर नॉट एलिजिबल, यू कैन नॉट क्लेम अ सीट. तो जिन्होंने अप्लाई करा हुआ है एमबीए एग्जाम के लिए, सिर्फ वो एलिजिबल हैं सीट लेने के लिए. ठीक है, सो अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि शुड आई गो फॉर एमएस और वन शुड गो फॉर एमबीए. सी इसके लिए ना आई जस्ट गिव यू अ सर्टेन parameters. I'll just tell you what are the things involved in both the fields, and then you can think about them and then decide for yourself. So first thing first, पहले तो as I said कि MBA प्रोग्राम के लिए सिर्फ वो बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था, जब जिन्होंने अप्लाई करा था इसके लिए, जिन्होंने ये ऑप्शन भरी थी. ठीक है,
नाउ सेकंड थिंग, जब आपका रिजल्ट आता है ना, जैसे आफ्टर जब आपने नाइपर जेई का एग्जाम दे दिया तो एक कॉमन लिस्ट बनती है, ठीक है, दैट इज द कॉमन रैंक लिस्ट, ठीक है। तो उसमें रैंक्स आएंगे आपके, जब वो रैंक्स आ जाएंगे उसमें से जिन बच्चों ने एमबीए का फॉर्म भरा होगा ना, तो एमबीए वालों की एक अलग से रैंक लिस्ट आती है, एमबीए रैंक लिस्ट, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, जैसे मान लो अगर तुम्हारा कॉमन रैंक लिस्ट में 50 रैंक आया है, ठीक है, और इन 50 बच्चों में से सिर्फ 30 ने से एमबीए के लिए भरा था, और उन 30 में से तुम्हारा से 12 रैंक है, तो एमबीए रैंक लिस्ट में यू विल बी द 12th कैंडिडेट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि दो रिजल्ट्स आएंगे जिन्होंने एमबीए भरा है, उनका एक कॉमन रैंक आएगा और एक उनका रैंक आएगा एमबीए वाला, ठीक है। अब कंपेयरिंग दीज टू एमबीए एंड एमएस, सी अगर तो आपका रिसर्च में मन है एंड यू हैव नेवर रियली थॉट अबाउट गेटिंग इनटू द मैनेजमेंट फील्ड, तो एमबीए मत करना। एमबीए तभी करना अगर आपका मन है, अगर मन नहीं है, इफ यू डू नॉट हैव दैट माइंडसेट, तो डू नॉट गो फॉर एमबीए जस्ट बिकॉज यू नॉट गेटिंग अ सीट इन एमएस, ठीक है। अगर जेन्युइन इंटरेस्ट है, ऑलवेज गो फॉर एमबीए, नो डाउट अबाउट इट, बट इफ यू डू नॉट हैव दैट इंटरेस्ट, डू नॉट गो फॉर एमबीए जस्ट बिकॉज यू डिडंट गेट अ सीट इन एमएस, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंडली, जब आपका एमबीए की रैंक लिस्ट आ जाएगी, एंड एमबीए की रैंक लिस्ट के बाद जिन लोगों ने एमबीए का भरा होगा, तो जब भी नाइपर की काउंसलिंग होती है, जब सीट्स भरी जाएंगी, तो वो लोग अहमदाबाद बुलाते हैं, ठीक है। इस साल भी अहमदाबाद ने ऑर्गेनाइज करा है, तो आपकी काउंसलिंग वगैरह या जो भी आगे फर्दर प्रोसीजर होगा एडमिशन का, वो अहमदाबाद में होगा। सो व्हेन यू गो टू अहमदाबाद, एक दिन होता है सिर्फ एमबीए के एडमिशन के लिए, ठीक है। उस एमबीए की एडमिशन में क्या होता है कि जिन्होंने ये एमबीए रैंक लिस्ट में जिन्होंने नाम भरा था ना अपना, जो इस रैंक लिस्ट में है, इनमें से दो बच्चे एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं। सबसे पहले उसमें दो राउंड होते हैं, उसके बाद ना पहला राउंड होता है जीडी, दूसरा राउंड होता है पीआई। जीडी इज बेसिकली ग्रुप डिस्कशन राउंड एंड पीआई इज पर्सनल इंटरव्यू। इसका दोनों राउंड्स का मिला के कुछ परसेंटेज होता है, काफी कम परसेंटेज होता है, मेरे को आई एम नॉट एग्जैक्टली अवेयर राइट नाउ, यू कैन रीड दैट इन द ब्रोशर। बट अगर आपका रैंक अच्छा है ना, तो जीडी एंड पीआई का इंपॉर्टेंस उतना ही कम हो जाता है, ठीक है। अगर आपका रैंक ही अच्छा है एंड यू वांट अ सीट इन एडमिशन इन एमबीए डिपार्टमेंट, तो बहुत इजीली मिल जाता है। बट अगर से आपका रैंक थोड़ा पीछे है या बॉर्डर लाइन पे है, तो देन जीडी एंड पीआई बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फिर क्योंकि क्या होता है, जब आपका जीडी और पीआई वाला राउंड हो जाता है, उसके बाद फिर से एक रैंक लिस्ट बनती है। उस रैंक लिस्ट में क्या होता है, जो आपका यहाँ पे रैंक था एमबीए रैंक लिस्ट में, जो आपका पहला रैंक था, वो रैंक, उसके कुछ मार्क्स होते हैं, प्लस जो आपने इस जीडी राउंड और पीआई राउंड में परफॉर्म करा है उसके मार्क्स होंगे। ये सारा कंबाइन होने के बाद लास्ट में एक फाइनल लिस्ट बनती है, ठीक है। वो फाइनल लिस्ट जब बनेगी ना, इस फाइनल लिस्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें सीट्स मिलेंगी कि तुम एमबीए में एडमिशन तुम्हें मोहाली में होगा, हैदराबाद में होगा कि अहमदाबाद में होगा, ठीक है। सो ये फाइनल लिस्ट होती है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे अपना पर्सनल एग्जांपल साइड कर देता हूँ, नाइपर जेईई मैंने 2019 में दिया था, ठीक है। तो नाइपर जेईई 2019 का जो कॉमन रैंक लिस्ट थी, जिसमें एमबीए के बच्चे भी थे और जिसमें एमएस वाले बच्चे भी थे, तो मेरा उसमें रैंक था 32, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने तुम्हें बताया कि एमबीए रैंक लिस्ट आती है अलग से, और मैंने वो भी भरा था। तो एमबीए रैंक लिस्ट में, एमबीए रैंक लिस्ट, इसमें मेरा रैंक था 14, ठीक है। और जो फाइनल जो रैंक लिस्ट बनती है, ये वाली फाइनल लिस्ट जिसमें मैंने बताया कि तुम्हारे जीडी और पीआई के मार्क्स जुड़ेंगे, तो ये मार्क्स जुड़ने के बाद माय ऑल इंडिया रैंक वाज 1, ठीक है। और जो एडमिशन होती है वो इस वाले रैंक पे होगी एमबीए में, ठीक है। एमएस के लिए तो जो तुम्हारा नॉर्मल जेई वाला रैंक है उसके बेसिस पे होगी, और एमबीए में तुम्हारे इस वाले रैंक के बेसिस पे होगी, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द कंपैरिजन बिटवीन एमबीए एंड एमएस। सी, एक तो सबसे पहले अगर मैं कंपनीज की बात करूं, तो कंपनीज एमबीए के लिए से कुछ प्रोमिनेंट कंपनीज में तुम्हें बता देता हूँ। जीएसके आती है, एलआई लिली आती है, डॉक्टर रेड्डी आती है, ठीक है, नोवाटिस आती है, एक्सेट्रा, बहुत सारी कंपनीज आती हैं। अब इनमें से
कुछ कंपनीज एमएस में भी आती हैं बट कुछ नहीं भी आती हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं होता कि हर साल आएगी। जैसे अगर मैं एलाई लिली की बात करूं तो एलाई लिली 2019 में एमबीए के लिए तो आई बट एमएस के लिए नहीं आई, ठीक है। एंड ये डिफरेंट प्रोफाइल्स होती है। एमबीए वालों के लिए वो सेल्स एंड मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट या कंसल्टेंसी के लिए आती है। एमएस के लिए हो सकता है कि वो सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, R&D के लिए आए, या मैन्युफैक्चरिंग के लिए। वो अलग अलग प्रोफाइल्स होती हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि उनको एमएस के बच्चे लेके जाने हैं या नहीं लेके जाने, दैट इज अप टू देम, ठीक है। एंड बहुत सी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ एमएस के लिए ही आती हैं। जैसे कुछ कंपनीज होती हैं जो है ही R&D है। जैसे देयर हैज बीन टॉक्स कि शायद इस साल 2020 में बायोकॉन आएगी, ठीक है। एंड बायोकॉन, सिंस वी नो इट्स अ R&D हैवी कंपनी, वो सिर्फ और सिर्फ R&D के लिए ही आ रही है, वो एमबीए के लिए नहीं आएगी। अभी आई एम नॉट श्योर आएगी कि नहीं आएगी, बट देयर हैव बीन टॉक्स की बायोकॉन माइट कम, ठीक है। सो आई एम जस्ट साइटिंग योर एग्जांपल कि देयर विल बी कंपनीज जो दोनों के लिए आएंगी, देयर विल बी कंपनीज जो सिर्फ एमबीए के लिए आएंगी या सिर्फ एमएस के लिए आएंगी, ठीक है। अब एक चीज और समझो, जो कंसल्टेंसी वाली फील्ड है, कंसल्टेंसी वाली फील्ड में ना एमबीए और एमएस दोनों के बच्चे आते हैं, ठीक है। जैसे अगर कंसल्टेंसी कंपनीज की मैं बात करूं तो जीएस है, आईक्यूविया है, ठीक है। लास्ट ईयर या शायद इस ईयर कुछ कंपनीज ऐसी भी आई हैं, जैसे लिली की अगर मैं बात करूं कि वो स्पेसिफिकली उन्होंने अपना एक नया ब्रांच शुरू करा है कंसल्टेंसी वाला, और वो कंसल्टेंसी फील्ड के लिए आई है। अब कंसल्टेंसी में क्या होता है कि दो कंसल्टेंसी इज की मोर रिलेटेड विद एमबीए, बट यू नीड सम टेक्निकल बैकग्राउंड एज वेल। तो कई बार क्या होता है कि उनके कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना कि जहाँ पे दे लुक फॉर एमएस पीपल। तो जीएस और आईक्यूविया में बहुत बार एमएस के बच्चे भी जाते हैं। एंड कंसल्टेंसी वाली कंपनीज दे आर ओपन फॉर एवरीवन, कि अगर कंसल्टेंसी वाली कंपनी आई है नाइपर के कैंपस में तो उसमें एमबीए वाले बच्चे भी बैठ सकते हैं, उसमें एमएस वाले बच्चे भी बैठ सकते हैं, ठीक है। whereas फॉर अदर कंपनीज से अगर कोई सेल्स की कंपनी आई है तो उसमें एमएस का बच्चा नहीं बैठ सकता, या अगर R&D की कंपनी आई है कोई तो उसमें एमबीए का बच्चा नहीं बैठ सकता। बट कंसल्टेंसी ऐसा है जहां पे दोनों चीजें बैठ सकती हैं, ठीक है। तो दिस इज अनदर एस्पेक्ट रिगार्डिंग द प्लेसमेंट्स, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट द एवरेज पैकेजेस, सी एमबीए में एवरेज पैकेज 7.5 to 8 lakhs के आसपास चला जाता है। और मैक्स अगर करंट इस 2000 इस साल की बात करो, जो पासिंग आउट बैच है 2020 वाला, उस बैच में मैक्सिमम पैकेज 10 लाख गया है, एंड वो दिया है जीएसके ने, ठीक है। बट इसके अलावा भी आ जाती हैं कंपनीज काफी सारी 7.5 to 8 लाख के ब्रैकेट में, ठीक है। सो एवरेज पैकेज यहाँ पे आ जाता है। वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट एमफार्म या एमएस में, यहाँ पे एवरेज पैकेज थोड़ा सा कम है, से 4.5 to 6 lakhs, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ये एवरेज बता रहा हूँ मैं 4.5 to 6 लाख, बट यहाँ पे भी जो मैक्स पैकेज गया था दैट वाज 9 lakhs, और ये भी जीएसके ने ही दिया था। सो जीएसके इस बार जब आई थी, इट केम फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट फॉर एमबीए, एंड एमएस वालों के लिए वो R&D के लिए आई थी। तो उसने दोनों के लिए पैकेजेस दिए हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट पैकेजेस जीएसके के लिए गए थे। इसके अलावा और भी बहुत कंपनीज आती हैं, सन फार्मा आती है, एंड आई एम करेंटली डूइंग माय समर इंटर्नशिप विद सन फार्मा, ठीक है। एमबीए में तुम्हारी 2 महीने की इंटर्नशिप होगी, एंड उसमें कंपनीज आती हैं, यू हैव टू सिट फॉर द इंटर्नशिप, वो सारी बात की चीजें हैं, पर आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू। तो कंपनीज आती हैं, ऐसा नहीं है। बट ये चीज देख लो, इसमें एमबीए में एवरेज पैकेज इज स्लाइटली हायर देन एवरेज पैकेज इन एमएस, बट मैक्सिमम पैकेज कुड बी सेम, ठीक है। So this was basically about MBA and MS. So if you are confused between the two, अच्छे से सोच के, अगर मन हो, इंटरेस्ट हो, तभी MBA करना, वरना मत करना। Never for the sake कि अगर MS में सीट नहीं मिल रही है तो मैं MBA कर लूं, and if you don't have that instinct in you, you might be very very miserable in MBA then. तो make sure you choose wisely, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। Now coming to the last part जो मुझे बताना है, that is कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है। सी जैसे मैंने पहले बताया कि 200 क्वेश्चंस होते हैं एंड यू हैव 2 आवर्स, तो रफली अराउंड 36 सेकेंड्स मिलते हैं पर क्वेश्चन, ठीक है, 36 सेकेंड्स पर क्वेश्चन। अब देयर इज नो राइट वे और अ रॉन्ग वे टू अटेम्प्ट अ पेपर, ठीक है। वो तुम्हारा हो सकता है, ऐसा कोई एक सेट रूल नहीं है कि यही सही तरीका है या ये गलत तरीका है या सही नहीं है।
बट मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ मैंने कैसे करा था एंड मुझे क्या लगता है। सी सबसे पहली चीज ना, जब तुम नाइपर का पेपर अटेम्प्ट करोगे, नाइपर के पेपर में ना ऑनलाइन होता है एंड इसमें तुम्हें 3 तरह के बटन्स मिलेंगे जब तुम क्वेश्चंस को विजिट करोगे, ठीक है। एक होता है तुम्हारा सिंपल ग्रीन बटन, ठीक है, कि जब तुम्हें कोई क्वेश्चन मिला तुमने उसको आंसर कर दिया तो वो ग्रीन हो जाता है, ठीक है। एक तो है ग्रीन बटन। एक होता है ऑरेंज बटन। ऑरेंज में क्या होता है कि तुमने क्वेश्चन तो खोला बट तुम्हें उसका आंसर नहीं आता तो तुमने छोड़ दिया, ठीक है, तो वो हो जाता है ऑरेंज। लास्ट जो होता है वो होता है पर्पल बटन। पर्पल बटन में क्या होता है कि तुमने क्वेश्चन खोला, तुम्हें बट आंसर नहीं आता, तुम श्योर नहीं हो और तुमने मार्क करके छोड़ दिया कि चलो बाद में देखेंगे। अब जीपैट में क्या होता था कि जितने भी तुम्हारे पर्पल वाले क्वेश्चन थे ना, अगर तुमने उनको ग्रीन नहीं करा है तो वो काउंट फिर भी होते थे। वेयर नाइपर में क्या होता है कि जो पर्पल वाला क्वेश्चन है ना जिसको तुमने ग्रीन नहीं करा, फाइनल में तुम्हारे पर्पल वाले क्वेश्चंस काउंट नहीं होते हैं, सिर्फ ग्रीन वाले क्वेश्चंस काउंट होंगे, पर्पल वाले नहीं होंगे। ये चीज ध्यान रखना, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत बार फंसे भी हैं। सो मेक श्योर यू डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक एटलीस्ट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो। अब मैं बताता हूँ कि पेपर करना कैसे है। सी 2 घंटे 36 सेकेंड्स पर क्वेश्चन। तो मैंने ऐसे करा था, लाइक जो मेरा फर्स्ट गो था, जैसे ही टाइम शुरू हुआ 2 आवर्स शुरू हुए एंड आई विजिटेड द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर तुम्हें पहला क्वेश्चन आता है उसको करो और उसको उसी टाइम ग्रीन करो कि हाँ आई एम श्योर अबाउट दिस, और तुमने उसको ग्रीन करके छोड़ दिया। जो क्वेश्चंस पे तुम 110% श्योर हो ना कि यार ये मेरे को आता है, इसका आंसर यही है, उसको ग्रीन करो एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को तुमने बाद में नहीं खोलना है, ठीक है। तो ऐसा समझ लो कि एक बार तुमने जिसको ग्रीन कर दिया उस क्वेश्चन को तुम दोबारा विजिट नहीं कर रहे हो। ऐसे ही आगे आगे बढ़ते जाओ। से तुम्हें सेकंड क्वेश्चन भी आता था, तुमने वो भी ग्रीन कर दिया, तुम्हें थर्ड भी आता था, वो भी तुमने ग्रीन कर दिया। सपोज फोर्थ क्वेश्चन आया, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन मान लो तुम्हें नहीं आता और वो ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता, यू हैव नो क्लू अबाउट दैट क्वेश्चन, ठीक है, तुम्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या पूछा है या तुम्हें उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसको छोड़ दो, उसको कुछ मत करो एंड जस्ट स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तुम स्किप करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पे जाओगे तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ना ये ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा ऑरेंज, फोर्थ क्वेश्चन ऑरेंज हो गया। ये पहले 3 क्वेश्चन हमने ग्रीन कर दिए, मतलब इनको हम दोबारा विजिट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन तुम्हें आता था, तुमने ये भी ग्रीन कर दिया। अब से सिक्स्थ क्वेश्चन जो आया ना, तुम्हें 110% श्योर नहीं हो, तुम्हें एग्जैक्ट पक्का नहीं पता है, बट तुम्हें कुछ ना उसके बारे क्वेश्चन के बारे में पता है, या अगर तुम उस पर थोड़ा सा टाइम सोचो या अगर तुम तुक्का मारो तो यू हैव दिस गट फीलिंग कि तुम उसको आंसर कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करो, अगर उसकी कोई तुम्हें ऑप्शन मार्क करनी है ऑप्शन मार्क कर दो, तो ऑप्शन अगर नहीं भी मार्क करनी है तो उसको ना मार्क फॉर रिव्यू कर देना, मतलब उसको पर्पल कर देना, ठीक है। तुम उसको पर्पल कर दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ऐसे ऐसे करते हैं ना, तुम अपने 200 क्वेश्चन सारे विजिट कर लो। जब एक बार तुम्हारे सारे 200 क्वेश्चन विजिट हो गए, ठीक है, ये ट्राई करना कि तुम्हारा ये 1 से लेके 200 तक 1 आवर 15 मिनट्स या 1 आवर मैक्सिमम 20-25 मिनट्स या 1.5 घंटे से ज्यादा तो बिल्कुल ना लगे, ठीक है। इतने टाइम में तुम अपना 200 क्वेश्चंस देख लो। जब तुम्हारे 200 क्वेश्चंस देख लिए तो फिर अब वापस आना, जो तुमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे हैं जिन पे तुम्हें डाउट है। अब जब तुम 200 क्वेश्चंस देख चुके हो और जब तुम्हें वापस आना ना, तो तुम इन क्वेश्चंस को नहीं देखोगे, ग्रीन वाले क्वेश्चंस को नहीं देखना है, क्योंकि ये तुम्हें पक्का आते थे, तुम मार्क करके छोड़ चुके हो। जो ऑरेंज वाले क्वेश्चंस हैं इन्हें भी नहीं देखना है। इन्हें क्यों नहीं देखना, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस थे जिनके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता, यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट देम, तो तुमने इनको ऑरेंज करके छोड़ दिया। इन क्वेश्चंस को भी विजिट नहीं करना। विजिट किनको करना है, विजिट तुमने करना है पर्पल वाले क्वेश्चंस को, ठीक है, जहां तुम्हें 50-50 श्योर है या थोड़ा बहुत आइडिया है। अब तुम सारे जितने भी तुम्हारे पर्पल क्वेश्चंस हैं, जब तुम्हारा 1.25 घंटा या से 1.5 घंटा पूरा हो गया, तो जितने भी ऐसे पर्पल क्वेश्चंस हैं ना जिनके बारे में तुम श्योर नहीं थे या जहां पे तुम सोच रहे हो कि यार मैं इसका मार्क कर सकता हूं, अब तुम इन पर्पल क्वेश्चंस को विजिट करो, इनको आंसर्स को मार्क करो, ठीक है। जब तुम्हारे पर्पल क्वेश्चंस हो जाएं, यूजुअली जब तक तुम पर्पल क्वेश्चंस खत्म करोगे उसके बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा, बट से तुमने 200 क्वेश्चन सारे विजिट कर लिए, तुमने
ग्रीन वाले कर लिए, तुमने ऑरेंज वाले सारे छोड़ दिए, उसके बाद जो तुमने पर्पल करे थे तुमने वो भी सारे अटेम्प्ट कर लिए, उसमें से जो जो तुम्हें करना था तुमने कर लिया। अब इसके बाद भी से तुम्हारे पास टाइम बच गया। इसके बाद भी अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है ना, अब तुम्हें अगर ऑरेंज वाले देखने हैं तो देख लो, वैसे टाइम बचेगा नहीं, आई कैन अश्योर यू दिस, बट अगर तुम्हारे पास 5-10 मिनट बचते हैं और तुम्हें देखना है तब तुम ऑरेंज वाले क्वेश्चंस पे जाओगे, वरना तुम सिर्फ ग्रीन वाले और पर्पल वाले ही मार्क करके आओगे। ठीक है, ग्रीन वाले तो तुम पहले अटेम्प्ट में ही कर दोगे और उनको देखोगे भी नहीं दोबारा। पर्पल वाले तुम 200 क्वेश्चन जब देख लिए उसके बाद विजिट करोगे, और उसके बाद भी अगर टाइम बचता है, जो कि बचेगा नहीं, तो तुम ऑरेंज वाला का सोच सकते हो कि यार चल इसको देख लेता हूँ, इसमें है क्या है, इसमें क्या नहीं है, वरना तुम ऑरेंज वाले क्वेश्चंस को नहीं देखोगे। ठीक है, तो मेक श्योर जब तुम पेपर अटेम्प्ट करो, इन 3 ऑप्शंस को तुम बहुत वाइजली चूज करना कि कौन से क्वेश्चन को ग्रीन करना है, कौन से को ऑरेंज करना है और कौन से को पर्पल करना है। ठीक है, और सिर्फ 2 घंटे होते हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं, तुम्हें 2 घंटे पता भी नहीं चलेगा। इट विल जस्ट इट फील लाइक अ मिनट और सो, तुम्हें लगेगा अभी पेपर शुरू हुआ था और इतनी जल्दी खत्म हो गया। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि अटेम्प्ट कैसे करना है। मेक श्योर ध्यान से करो, इन पॉइंट्स का प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग द एग्जाम, या कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ पूछना है, एनीथिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट एनी वन ऑफ अस, वी आर ऑल हियर टू हेल्प यू। सो ऑल द बेस्ट, मेक श्योर तुम अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करो, एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ठंडे दिमाग से पेपर करना। डू नॉट पैनिक, ज्यादा सोचना मत कि क्या होगा क्या नहीं होगा, डू नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट, जस्ट फोकस ऑन द डीड्स दैट नीड टू बी डन। ठीक है, अपनी मेहनत करो एंड अच्छे से तरीके से अटेम्प्ट करके आओ, बाकी उसके बाद जो होगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, बट मेक श्योर यू गिव योर बेस्ट शॉट। ठीक है, एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव अ कूल माइंडसेट। एंड एक और चीज, जरूरी नहीं है कि तुम्हें पेपर, ये जो मैंने तरीका बताया है इसी तरीके से करना है, ये मैं तुम्हें अपना तरीका बता रहा हूँ। इफ यू हैव सम अदर स्ट्रेटेजी एंड यू फील दैट इज बेटर फॉर यू, यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट। ठीक है, बट दिस इज व्हाट दैट आई ट्राइड एंड दैट वर्कड फॉर मी, सो आई एम टेलिंग यू माय एक्सपीरियंस। एंड एक और चीज, क्वेश्चंस कम मत अटेम्प्ट करके आना। like this has been a general norm over the years which I have heard and also seen. तुम जितने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हो उतने ज्यादा चांसेस हैं तुम्हारे एडमिशन होने के भी एंड तुम्हारा रैंक अच्छा आने के भी। ठीक है, सो मेक श्योर यू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस। इफ आई गिव यू अ पर्सनल एग्जांपल, मेरा रैंक 32 था एंड मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे 165। ठीक है, एंड देयर वाज दिस अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, उसका 25 रैंक है। ठीक है, एंड उसने अटेम्प्ट करे थे 175। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ क्वेश्चंस। अगर मैं भी, एंड आई वाज शॉर्ट ऑफ टाइम, अगर मेरे को 500 और मिनट मिलते तो शायद मैं भी 10-15 क्वेश्चन और करके आता एंड मे बी मेरा रैंक और अच्छा होता। सो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जितने ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो अटेम्प्ट करना, एटलीस्ट हैव लाइक वहां की, तुम सोच के चलो कि तुम्हें 150-160 क्वेश्चन तुम्हें मार्क करने ही करने हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाओगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे एंड बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ होंगे, क्योंकि बहुत इजी पेपर आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। सो ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट शॉट एंड ठंडे दिमाग से करके आना। थैंक यू।